हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमी एंड लेट्स स्टार्ट विद द इडियम्स फॉर द डे। तो हमारा फर्स्ट इडियम है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर, हवा में चलना, राइट? तो क्या होगा? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। सो आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन 7th heaven, right? So I'm walking on air. Similar idioms, right? But different words use किए हैं to express your emotion. Correct? Now देखो, when I heard my name in the finalist list, I was walking on air. मतलब मैंने जो finalist की list थी उसमें मेरा नाम सुना, so I was walking on there. I was very happy, extremely elated, right? Next idiom है हमारा walk on eggshells. Now every one of you knows, right, कि eggshells कितने delicate होते हैं, right? You just put your finger like this and it breaks, correct? So eggshells are very delicate and if you walk on eggshells it will break, obviously. Similar idiom तुम life से connect करो तो कैसा होता है? To be careful around someone so that the other person does not get upset. वो upset ना हो जाए तो बहुत सोच समझ के अच्छे से पूरा एकदम डिटेल्ड में सोच के तुम बोलो, so that the other person उसको बुरा ना लगे, right? So that is walk on eggshells. देखो, my sister gets angry very quickly, so I feel I always have to walk on eggshells whenever she is around. So I have to walk on eggshells because my sister gets angry very quickly. तो बहुत ध्यान से सोच समझ के मुझे बोलना पड़ता है, right? Next देखते हैं, wear heart on sleeve. Wear heart on sleeves. तो यहाँ पे heart रख दिया, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब तुम जो emotions feel कर रहे हो, whatever you are feeling, you are very open about it. That is on the sleeves, ठीक है? तो to be open about one's emotions मतलब wear heart on sleeve. देखो, Neha wears her heart on her sleeve and so she tends to get hurt easily. इसीलिए, because she is very open about her emotions, she tends to get hurt very easily. हम बोल सकते हैं, right? So this is the meaning of wear heart on sleeve idiom. Next देखते हैं, young blood. ठीक है, तो ये तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत जगह सुना है. These are young blood. इसीलिए क्या है? Ever ready to revolt, right? Why? Because they are very enthusiastic, eager people. उनको अगर change चाहिए तो they will revolt against it. हमने history में बहुत बार ये सुना है. So those people were young blood then. इसीलिए बहुत ज़्यादा जोश था उनमें. So they were young, enthusiastic people. तो देखो sentence में कैसे use किया है? The institution needs young blood in order to progress. तो in order to progress, institution को क्या चाहिए? Young blood चाहिए, मतलब ऐसे लोग चाहिए young जो बहुत enthusiastic हो, जिनको पता है what is going on these days और वो ready to change हो, correct? Next है you have made your bed. You have made your bed मतलब अब सोने के लिए तैयार, right? नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? टू मेक अ डिसीजन एंड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब तुमको पता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगी तो इसका रिजल्ट ये रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहेंगे, फिर भी तुम वो डिसीजन लेते हो. दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. दैट मीन्स यू हैव मेड योर बेड. क्लियर? अब देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है. I'll not force you to take back your words against my brother since it seems you have made your bed. So you know what you have decided and you are ready for the consequences. So I'll not tell you to take your words back. You be ready for the consequence. है ना? So sentence समझ में आया? ऐसे हम use करते हैं idiom you have made your bed. Clear? बढ़े आगे? Next देखते हैं zone out. Zone out का मतलब क्या होता है? To fall asleep. So whenever the clock strikes 11 p.m. I zone out. So I sleep off. Okay. So instantly I go to sleep. I feel very sleepy. Okay. So देखो, whenever my friends start to talk about the current affairs, I zone out. तो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ topics किसी को boring लगते हैं तो instantly वो क्या? Doze off. Doze off is another idiom for zone out. ठीक है? तो instantly they feel like sleeping. So I get very bored when my friends talk about current affairs. So I zone out. I fall asleep. ठीक है? समझा? Next है Zero hour. Zero hour बहुत सारे तुम थ्रिलर मूवीज देखते हो, एक्शन मूवीज देखते हो, उसमें आता है zero hour, राइट? तो zero hour का मतलब क्या है? टाइम एट विच समथिंग क्रूशियल स्टार्ट्स.
मतलब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने का टाइम, मतलब 0 आवर। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, माई प्रेजेंटेशन इज ड्यू टुमारो एंड 0 आवर इज 9 AM, मतलब 9 बजे शार्प मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द वे यू यूज ईडियम 0 आवर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं zip it। ठीक है, तो सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर सिटिंग विद सम अदर फ्रेंड्स विच आर नॉट दैट क्लोज टू यू। अब तुम बात बात में तुम्हारा फ्रेंड बहुत मतलब इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशन शो कर रहा है, ही स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट, ब्लैबरिंग। ठीक है, सब बात करते 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 बहुत सारा कुछ बोल दिया, तो तुम क्या बोलते हो? प्लीज जिप इट, मतलब कीप क्वाइट नाउ, हो गया, बहुत शेयर कर लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स जिप इट, टू आस्क समवन टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए, टू शट अप। ठीक है, तो मतलब जिप इट। ऑल राइट क्लास, जिप इट अप, आई डोंट वॉन्ट टू हियर अनदर वर्ड। सो टीचर्स व्हेन दे एंटर द क्लास सबसे पहला क्या बोलेंगे? बस शांत हो जाओ सब, कीप क्वाइट। सो अनदर वर्ड इज जिप इट। ओके, नेक्स्ट है जेनिथ ऑफ करियर। जेनिथ मतलब क्या होता है? पीक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वंस करियर। तो तुम प्रोग्रेस करते 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 नाउ यू हैव बिकम द CEO ऑफ द कंपनी सपोज, तो तुम क्या बोलोगे? आई एम एट द जेनिथ ऑफ माई करियर, मतलब आई एम द पीक ऑफ माई करियर, आई एम एट द पीक ऑफ माई करियर। ठीक है, और समवन एल्स सेज इट फॉर यू, तो यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर। तो देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है? अरहान इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर एंड देयर इज नो स्टॉपिंग हिम फ्रॉम व्हाट ही वांट्स टू अचीव। मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पे है करियर के जो हो सकता है उसका हाईएस्ट पॉइंट हो करियर का। ओके, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग हिम नाउ। क्लियर? नेक्स्ट, जूम ऑफ। ओके, हमने ये बहुत बार सुना है, हम मोस्टली इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जूम्ड ऑफ। ही इंस्टेंटली जूम्ड ऑफ एज सून एज ही सॉ मी, मतलब मेरे को देखते ही क्या चले गए, राइट? सो वेन एवर यू सी इन योर कॉलेजेस, मेनली तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे प्रिंसिपल्स को देख लिया, या तुम्हारे जॉब में बॉस को देख लिया, भाई मैं दिख जाऊँ उसके पहले मैं यहाँ से चले जाता हूँ वरना और काम मिल जाएगा, है ना? ऐसा होता है। सो यू इंस्टेंटली जूम ऑफ, मतलब यू लीव इन अ हरी, इंस्टेंटली यू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, जल्दी से निकल जाते हो। तो देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है? Karan zoomed off as soon as he saw the principal coming towards him. So he instantly ran from there. Okay, so he left in a hurry. ठीक है, समझ आए idiom सब? ठीक है, सब easy है idioms, you can use it in your day to day life. बस तुमको पता रहना चाहिए क्या idiom, कौन सी idiom का मतलब क्या होता है। Once you get to know the meaning of the idioms, it is very easy to use it in your conversations. I hope it's clear. Thank you.